And am I audible to everybody, right? Yes, sir. Yeah, okay. So I'll just share my screen first and then I'll talk about it. Okay, can everyone see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, great. So thank you so much for giving me this opportunity to speak with all of you. And today's topic is one of my favorite topic, which is mastermind behind the universe. It is very interesting subject, and I remember when I was in your age, I was thinking about this topic all the time. Who is the mastermind behind this this creation and everything related to this? So before I jump in to my topic and discuss this session in detail, what I'd like you to start with emoji reaction, if it is possible for everybody. So what I mean that, so I'll be speaking both English and Hindi so that my message get conveyed to everybody. And in this thing, what I'm trying to say that हम इसको अभी एक emoji reaction के through will tell everybody how we are feeling right now. Like currently, I'm feeling great to be here with you all. So I'm going to show a reaction like happy. I'm very happy to be here. So I'll give 30 seconds to all of you to show a reaction on your profile, how you're feeling. If you are feeling happy, then show happy emoji. अगर आप थोड़े टायर्ड हैं, इवनिंग हो गई है, तो आप टायर्ड का एक इमोजी लगा सकते हैं. And if you are angry on me or on us, then you can also show that कि हम आपको संडे इवनिंग आपको बुला के बैठा के लेक्चर दे रहे हैं और आप आए हैं, I don't know, willingly or forcefully. Some angry emotions because that reaction is also very welcome here. So please go ahead. I give you 30 seconds and your time starts now. आप कैसा फील कर रहे हैं वो आप इमोजी बना सकते हो. Okay, I can see that. Yeah, nice. I can see some emojis. Thank you, Vibhuti. Thank you, Manya. Okay, great. Okay, so it seems almost everybody is happy, I guess. Okay, cool. Great. So let's begin the topic first. And it's, as I said, it's very interesting topic. Who is the mastermind behind the universe? जो भी आपके आसपास दिख रही है चीजें, उसके पीछे कौन है, किसने ये क्रिएट किया है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सब टॉपिक पे हम बात करेंगे. So I will begin my yes. So सब लोग देख सकते हैं स्लाइड्स, ओके. एंड हम इस सेशन को कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने के लिए. वी कैन ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव. If you have anything, you can raise your hand. I can call your names and then we'll see अगर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं. So the images you can see here are there are 4 different images, and if people can identify these images, what are these images? These are very relevant to today's topic, and अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड. ओके, सो आई कैन, कौन बताना चाहेगा कि ये क्या है? You want to raise your hand? Okay, I'm not sure. Okay. Also there are lots of. Okay, Dhruv Sharma, can you unmute yourself and identify?
any of the 4 images. Can they unmute themselves? Okay. Also, we have to ask them. Okay, no problem. So I'm going to reveal everything. Probably you guys already know this. So first image is an iPhone. जो सबको पता है कि iPhone है और it's one of the best phone जो भी available अभी है. Second, जो logo है, it's a logo of Facebook. हम सब familiar हैं, हम उससे connected भी हैं, हम लोगों से अब बात कर सकते हैं. Third is a photograph of a car which is used to आप एक जगह से दूसरी जगह तक travel कर सकते हैं. Fourth is a light bulb. So following this, इन सब के पीछे किसी न किसी ने इसको बनाया है. जैसे अगर ये एक कोई चीज क्रिएट की गई है तो इसके पीछे बनाया. जैसे आईफोन के जो क्रिएटर हैं वो है स्टीव जॉब, और फेसबुक के जो हैं वो उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, एज यू ऑल नो. Third is a Tesla car, which has been like buzzing all over the news in recent times. Electric car and everything. And fourth is Thomas Edison. So there's a very interesting story about Steve Jobs. So Steve Jobs, जब जो Apple company जब form कर रहे थे, so उनके पास ideas था, but उनके पास funding नहीं थी, पैसे नहीं थे इस चीज को करने के लिए. और उनके लाइफ स्टोरी में वो मेंशन करते हैं एक जगह कि वो हर संडे कुछ किलोमीटर ट्रैवल करके आते थे. फ्यू माइल्स ही यूज्ड टू वॉक फ्रॉम हिज प्लेस टू अनदर प्लेस. और जहाँ वो जाते थे वो एक इस्कॉन सेंटर था, और वो हर इवनिंग को वहाँ पे जाके प्रसाद लेते थे, सबसे एसोसिएट होते थे क्योंकि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे उस वक्त. सो he knew there is a ISKCON center. प्रभुपाद जी जो भी हमने एस्टैब्लिश किया था उस समय, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. तो जाके उस समय प्रसाद लेते थे, सबसे डिस्कस करते थे, जो भी इंटरेक्शन था, और फिर वापस आते थे. So this is how he also summarized his life in a way, like he got associated with ISKCON centers. Following that, Mark Zuckerberg की भी interesting story है, because और मार्क जकरबर्ग ही यूज्ड टू फॉलो स्टीव जॉब. वो उनको अपना मेंटर और एज अ इंस्पिरेशन मानते थे. और इनको भी ही आल्सो रीच्ड टू इंडिया, हरिद्वार, वेयर he got associated with some ashram there to learn कि आपको लाइफ में क्या करना है या किस तरह से हम चीजें कर सकते हैं. So all I'm trying to say that these famous personalities in the world, they had some interaction or some thoughts कि चीजें कैसे इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, क्या इंस्पिरेशन हो सकता है. So yes, I mean that's the point. So इस स्लाइड का पर्पस हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज क्रिएट की गई है इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी है, उसके पीछे एक क्रिएटर है. तो अगर एप्पल किसने बनाया है, सो स्टीव जॉब इज ए क्रिएटर. फेसबुक बनाया है तो मार्क जकरबर्ग इज ए क्रिएटर. उस तरह से लाइट बल्ब का भी है, कार्स का भी है. सो जब भी कोई चीज क्रिएट होती है, देयर मस्ट बी अ पर्पस फॉर दैट. लाइक फेसबुक उन्होंने ऐसे नहीं बनाया, देयर वाज अ पर्पस टू कनेक्ट पीपल ओवर द इंटरनेट. आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाइल आई एम सिटिंग thousands किलोमीटर अवे फ्रॉम यू. आप किसी और से बात कर सकते हैं, आप इंडिया में किसी से बात कर सकते हैं. Phone, using phone, same way. So all these facilities, they are created by a creator for a purpose, for a definite purpose, right? So following the same concept, अगर हम
अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, दे आर लाइक अगर हम सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन देखते हैं, तो हमारे आसपास ह्यूमन पॉपुलेशन है, फिश पॉपुलेशन है, ब्यूटीफुल बर्ड्स है। ये जो आप इस फोटोग्राफ में देखते हैं, हमिंग बर्ड नेक्टर फ्लावर से ले रही है, ब्यूटीफुल पीकॉक, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव सीन ब्यूटीफुल जो जो फेदर ओपन होते हैं, लाइक वेरी, if you see the design, it's very beautiful. Similarly, landscape है, rivers हैं, mountains हैं. ये clown fish है, if you recognize this fish here. So the point I want to make here is, अगर based on this concept कि अगर कोई चीज create हो रही है for a purpose, ये चीजें भी for a purpose they are also created in a way, like human population क्यों create हुई है, fish की population क्यों है. So we all living in an ecosystem where things have been created. So हम अभी इस टॉपिक से, अभी इस स्लाइड से ये समझ सकते हैं कि हमारे भी कोई क्रिएटर है और हमारे भी एक पर्पस है. सो क्रिएटर मस्ट हैव क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स फॉर अ पर्पस. अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ही इज लाइक ही इज अ मास्टरमाइंड बिहाइंड, और ये चीजें बहुत आप समझ सकते हैं, इतने बड़े रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको क्रिएट करने के लिए बहुत सारा लाइक ब्रेन चाहिए, बहुत लाइक वो ही मस्ट बी वेरी पावरफुल जिसने भी हमें, और लाइक वेरी ब्रेनी जो जिसने भी ये चीजें क्रिएट की हमारे लिए, यहाँ भी जिसने बनाया. तो हम ये समझ सकते हैं कि देयर इज सम सुपर पावर, और नॉट सुपर पावर, लाइक सुपर सोल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये जो हमसे बहुत ही स्मार्ट है, इस वे में इसको समझ सकते हैं. एंड बट नेक्स्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ कैन आई बिलीव इन some personality, or you can say God, or the super like human है, not superhuman, like in a super soul concept, the mastermind है. How can I believe something which I have not seen, right? इस चीज से हम एग्री कर सकते हैं, और ये बहुत ही रैशनल थॉट है कि अगर हम कोई चीज हमें दिखती नहीं है तो हम उसे कैसे यकीन कर सकते हैं, राइट? सभी एग्री करते हैं इस पॉइंट से. एंड पर ये अभी हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कि जो हम चीज देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, और हम कुछ ऐसी चीज भी बिलीव करते हैं जो हम देख तो नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो हम जैसे एक एग्जांपल है, I'm having trouble in this changing slides, I guess. Okay, moving on to this slide. Everybody I think familiar with Wi-Fi router, सभी लोग के घर में इंस्टॉल होगा या आप फोन के साथ कनेक्ट होकर देख रहे हैं. मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों से थ्रू दिस Wi-Fi router. सो कितने लोग अब तक वाईफाई देख चुके हैं अपने लाइफ में, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वाईफाई हम देख नहीं सकते बिकॉज दीज आर वेव्स जो हम आंखें हमारी परसीव नहीं कर सकती हैं. आंखें क्यों परसीव नहीं कर सकती हैं? because these eyes are not equipped for seeing these waves. जैसे आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, राइट? बट आप देखते तो नहीं, वेव्स तो नहीं देखते कि आप माइक्रोवेव में क्या चल रहा है, बट समहाउ आपका खाना गर्म हो सकता है उस माइक्रोवेव में, जो हम सभी घर में भी यूज करते हैं. So based on this, we do not see Wi-Fi, but we still believe because we can feel it, we can sense it. ये चीजें exist करती हैं. सेकेंड है साउंड ऑफ एयर, या साउंड ऑफ एयर या एयर को जो आप फील करते हैं. तो इस आई होप यू गाइस कैन हियर दिस वीडियो, राइट? जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि एयर का भी साउंड है, राइट? तो आप एयर को कैसे फील करते हैं? जब आपको फील होता है कि एयर है, आप ब्रीथ करते हैं उस चीज को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उसको लीव्स देखते हैं कि ट्री की लीव्स मूव करे तो आपको फिर फील होता है कि हाँ ठीक है, देयर एयर एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि आपने उसको फील किया. सो पॉइंट ये है कि
ये हम इससे भी एक चीज ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को हम बिलीव करना चाहते हैं, सो ये जरूरी नहीं है कि वी नीड टू सी इट. इफ इट इज फंक्शनिंग, इफ वी कैन फील इट, we don't necessarily need to see, right? I hope इस आप इस बात से एग्री करते हैं. एंड नेक्स्ट फिर हम आसपास सराउंडिंग्स में ऐसी भी चीजें देखते हैं जिसमें हम चीजें वो देखते तो हैं बट वी डू नॉट बिलीव इट कि ये एग्जिस्ट करता है या ये सच होगा. जैसे इसका एक एग्जांपल होता है, अगर आप ट्रेन की जो पटरियां हैं, जो रेलवेज की जो लाइंस होती है जिसपे ट्रेन चलती है, उसको वो अगर आप दूर से देखेंगे तो इट विल परसीव लाइक इट इज मर्जिंग आफ्टर एट सम डिस्टेंस. बट ऐसा होता नहीं. अगर ऐसे मर्ज करिए तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक आप नहीं जा सकते. देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स. आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल जिसमें हमें दिखता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जस्ट एक इल्यूजन होता है. वो हमारा वो रियलिटी नहीं होती. दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर. I'll play this video, and it's a 3D painting basically on the floor. आप देख सकते हैं साइड में फुटपाथ्स हैं और ये ऑप्टिकल इल्यूजन से क्रिएट किया गया पेंटिंग है जिसमें आपको लग रहा है कि सब चीज रियल है, राइट? ओके. सो इस पर्टिकुलर फोटो में आप देख सकते हैं शी इज ट्राइंग टू जंप ऑन अ डिफरेंट रॉक, जो रॉक भी फॉलिंग सा लग रहा है. सो ये भी एक काइंड ऑफ 3 डायमेंशन है, बट वी ऑल नो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स जस्ट अ इल्यूजन. ये भी एक बहुत अच्छा इल्यूजन है जिसमें पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि ब्रिज से किधर जाना है. एंड बट ये सब एक इल्यूजन है. there's nothing, there's no reality in it. Okay. सो अब तक हम कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ पे बिलीव करना है, कोई भी चीज़ हमें समझनी है, बिलीव करना है, तो हम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी नीड टू सी इट. देखना और नहीं देखना ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी चीज़ पे बिलीव करने का. आप बिना देखे भी अगर आप कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं तो आप उसको अगर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. जो अब तक का हमारा कंक्लूजन इस सेशन के अंदर है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो अगर ये हम सेटअप कर लेते हैं कि बिलीव करने के लिए वी डोंट नीड टू सी इट, राइट? सो हम कैसे मान लें कि जो मास्टरमाइंड है, जो गॉड है, वो एग्जिस्ट करते हैं. जो हमने अभी इससे पहले जो हमने स्लाइड्स देखी थी जिसमें हमने क्रिएशन और क्रिएटर की बात की थी, तो जैसे हम क्रिएट किए गए हैं, जैसे लैंडस्केप क्रिएट किए गए हैं, उनका प्रूफ क्या हो सकता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, विच इज अ वेरी लॉजिक क्वेश्चन, राइट? तो नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे एग्जांपल्स हैं जो जिनसे हमने चीजें सीखी हैं, लाइक नेचर को देखते हुए, नेचर से मिमिक करते हुए चीजें हमने डिजाइन की, इट इज कॉल्ड नेचर इंस्पायर्ड इनोवेशन. बट क्वेश्चन ये है कि हु डिजाइन दैट नेचर. लाइक जो फर्स्ट एरोप्लेन डिजाइन हुआ था वो राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया था. और उनसे जब पूछा गया कि आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, तो उन्होंने बर्ड का एग्जाम्पल दिया कि बर्ड जैसे उड़ सकती है वैसे व्हाई नॉट वी कैन आल्सो ट्राई टू डू सेम थिंग. वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अभी आप देखते हैं कि सब लोग फ्लाइट से, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं. सो इंस्पिरेशन अगर आप देखो, हम ये सारे एग्जांपल्स व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू इन कमिंग स्लाइड्स,
is basically inspired from nature. We are just checking our surroundings, like ये कैसे डिजाइन होगा, इसको किसने डिजाइन किया होगा, और इसको ये ह्यूमन लेवल पे डिजाइन नहीं लग रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना है यहाँ पे. सो द पॉइंट इज, इफ देयर इज नो गॉड, सपोज करते हैं कि नहीं है भगवान हमारे आसपास, सो हु डिजाइन दिस ईगल, हु हैज इंस्पायर्ड people to design or mimicking this eagle to make a aeroplane. आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है. और there are different kinds of birds, small birds, large birds, इन सबके स्ट्रेंथ अलग हैं, सबके फ्लाई करने का तरीका अलग है. यहाँ पे तो सभी एरोप्लेन ऑलमोस्ट सेम तरीके से फ्लाई करते हैं, बट अगर आप डिजाइन के तौर पे देखें, सो देयर आर सो मेनी डिजाइंस इन नेचर. तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि इट्स अ बिग टास्क. ये ह्यूमन लेवल पे हम नहीं इसको एग्जिस्ट कर सकते. नेक्स्ट, ये भी एक बहुत बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि इट्स अ टाइम लैप्स वीडियो. टाइम लैप्स मींस कुछ घंटे तक इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है टू सी कि कोई चीज़ कैसे हो रही है. जैसे अपने घर में कोई फ्लावर लगाया पॉट में, एंड आप उसको पानी वगैरह दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, देन वो कैसे ग्रो करता है ओवर द टाइम. And you can see they're like so beautifully designed, different colors, different fragments also. वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, कोई नाइट में ओपन होता है फ्लावर, कोई डे में ओपन होता है, सबकी इंपॉर्टेंस है. लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं. इट्स वेरी ऑर्किड फ्लावर हियर, यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल. So all I'm trying to say here, that even if you look out our surroundings, जो आर्टिस्टिक वे में जो डिजाइन की गई हैं, वो इट्स वेरी इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इफ देयर इज नो गॉड. ये चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, हम इसी पे बेसिकली वी आर डिस्कसिंग. नेक्स्ट इमेज इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिएशन. सो लैंडस्केप क्रिएट हुए हैं. यू कैन सी हियर there's a beautiful pond here, जिसके आसपास जो क्लाउड्स हैं उसके बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं. दिस काइंड ऑफ अ हिली एरिया जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है. सो ये ओवरऑल जो लैंडस्केप जो दिख रहा है, ये ब्यूटीफुली क्रिएटेड है. सो देयर आर सम लाइक इसको मिमिक करके पीपल हैव ट्राइड टू मेक, इवन इन जापान, इवन इन यूएस, मैन मेड आइलैंड और समथिंग डिजाइन किया हुआ है. लेकिन जिसने इस लाइक जो अगर गॉड नहीं है, तो ये जो नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हाउ दे आर मेंटेनिंग देमसेल्व्स, या वो कैसे क्रिएट हो रही हैं. सो ये एक लाइक दिस अनदर थॉट व्हिच इज बेस्ड ऑन अ क्रिएशन, हाउ द क्लाउड्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ पॉन्ड एंड एवरीथिंग. This is one of my favorite videos where you can see it. We'll hear this out, and it's example of craftsmanship. आर्किटेक्ट कैसे बिल्ड किया गया है और कैसे एक स्पाइडर बिल्ड करता है. सो आप इस वीडियो को आप ब्रेक करके पूरा अच्छे से सुनेंगे. विल ट्राई टू एक्सप्लेन. Mathematician spiders. Like you can see स्पाइडर को एज अ मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Okay? Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters. So इस वीडियो में जो ऑडिटर है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक स्पाइडर की साइज अगर ह्यूमन की साइज के बराबर हो, और जो स्पाइडर इस वेब को बिल्ड करता खुद से अकेले, सिंगल हैंडेडली वर्क इज देयर, वो उसके जो डायमेंशन है वो बेसिकली 150 मीटर का डायमेंशन है. सो 150 इज बेसिकली आई थिंक बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में उससे भी बड़ा वो खुद डिजाइन अकेले डिजाइन करता है. Which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a wastework the size of the 50-story skyscraper? So what he's saying that if 50-story building बनाया हुआ वो भी सिर्फ सिंगल हैंडेड
स्पाइडर इतना बिल्ड करता है बाय इट्स ओन। और इसके पीछे बहुत सारा कैलकुलेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, हाउ टू डिजाइन दिस, हाउ टू कैलकुलेट kind of material wise also. Let's see. 50-story skyscraper in only an hour. But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web, hundreds of times larger than its own size. So what? Okay, I'm sorry. So what? Meters, which corresponds to a 50-story. Is it possible for a human? Okay. But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? Oh, I'm sorry. More than that. Let's Moreover, hear the video. the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web, hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer. Otherwise, the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. Okay, so I can give some comments on this. So यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्पाइडर जो मटेरियल डिजाइन किया है उसको अगर किसी सेम चीज अगर सेम लेवल पे अगर किसी ह्यूमन को ये डिजाइन करना हो तो उसमें कैलकुलेशन बैठाना होगा बहुत सारे कि किस मटेरियल से कैसे ज्वाइन करना है, क्या मटेरियल यूज करना है, और आफ्टर दैट सब कुछ बनने के बाद भी पूरा वेब स्पाइडर को होल्ड करता है। तो उसके लिए भी दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन सो दैट समथिंग कैन बी हैंग इन द सेंटर ऑफ द वेब। ये इंपॉर्टेंट होने के बाद भी द ऑडिटर उसको कंपेयर करता है एज अ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स जो भी अभी बीटेक या इस फील्ड में इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए दे नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट स्पाइडर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जैसे ही वो पैदा होते हैं वहीं से they have this intelligence to design a web for themselves. So important thing ये है कि उनको इतने कैलकुलेशन किए, इतने डिजाइन करने के लिए इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है ना, ये चीज कैसे गाइडेड है। अगर हम तो चलो अब तक ये समझ रहे थे कि ये सब कैसे क्रिएट किया गया है, कैसे मेंटेन हो रहा है, दैट्स लाइक अगेन अ ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस। बट किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको सर्वाइवल के लिए उसको इंटेलिजेंस, उसको जो भगवान बुद्धि दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं। सो इफ देयर इज नो गॉड हु टॉट द स्पाइडर्स आर्किटेक्चरल मेजरमेंट्स टू बिल्ड हिज ओन वेब्स, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्डर एंड हार्मनी। सो इस केस में यू कैन सी कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, दे आर रोटेटिंग एट अ फिक्स्ड पोजीशन, सबके अपने अपने एरिया है, जोन है, जिस उसी एरिया में वो आपस में रोटेट करते हैं, फिर ऑर्डर फॉर्म करते हैं, एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली ट्रैवल करते हैं, कोई किसी से आपस में लड़ता नहीं है, सब पीस एंड हार्मनी के साथ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं लाइक मोस्टली आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन जापान फ्यू इयर्स बैक, वहाँ पे भी वो ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बिफोर दे ट्रैवल। लाइक अभी जैसे मैं भी ड्राइव करता हूँ तो यूएस में भी आई मस्ट मेंटेन 30 फीट डिस्टेंस अगले से, ताकि अगर अगले सामने वाले कोई प्रॉब्लम है तो वो
वो मुझसे हेल्प मांग सकता है या मैं साइड रास्ता ले सकता हूँ. बट आई हैव सीन इन इंडिया ऑल्सो, इवन आप ऑन हाईवे आप ड्राइव करते कोई भी आ जाता है, कैसे भी ड्राइव कर सकता है. तो वो थोड़ा हार्मोनी एंड ऑर्डर ये प्लैनेट्स मेंटेन कर रहे हैं. तो ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर क्लासरूम में टीचर नहीं है तो कितने लोग ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन करते हैं, है ना. फिर क्लास मॉनिटर को पकड़ना पड़ता है कि सबके सबके नाम लिख लो जो जो बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है. तो आपको जब तक एक प्रेशर नहीं होगा तब तक order and harmony is very difficult to maintain. But then how these celestial bodies are maintaining this order, which is again up, if you cannot imagine if somebody is not taking care of these things, if there's no God who arranged all these things to maintain our solar system, वो तो फिर collapse कर जाएगा बहुत easy, right? I hope यहाँ तक understanding है हमारी. Another okay, so another again a concept of so एक फिर से कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने जो ह्यूमन ब्रेन है उसने कई सारी चीजें डिजाइन की हैं. लाइक इनिशियली कैलकुलेटर्स डिजाइन किया था जो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, एल्गोरिथम बेस्ड थे. एंड फॉलोइंग दैट कंप्यूटर डिजाइन किए, फिर अभी लेटेस्ट कंप्यूटर डिजाइन हो रखे हैं, उसमें कई सारे प्रोग्रामिंग्स होते हैं. सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया है, सेम ह्यूमन पॉपुलेशन ने ये चीजें डिजाइन की हैं. सो अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लिख के कोडिंग करके आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं. जूम भी किसी ने कोडिंग करके डिजाइन किया होगा जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो ये सारे इंफॉर्मेशन आप ब्रेन से, आप अपने ब्रेन यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं. सो बट द क्वेश्चन इज वो इंटेलिजेंस कहाँ से आता है आपके माइंड में. जैसे इफ आई टेक माय एग्जांपल, सो जब मैं रिसर्च करता हूँ, कोई ऐसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं जो आज तक किसी ने ना सोचा होगा, ना सोच रहे हैं, ना उस पर कर रहे हैं, सो दैट हम कोई नई चीज फाइंड करते हैं. तो उस केस में आपके पास इंटेलिजेंस कहाँ से आता है. वो फर्स्ट थॉट, अभी भी जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, वो फर्स्ट थॉट कैसे जनरेट होता है, कहाँ से उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, राइट? इस पे आप सोच सकते हैं. सो वो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल आई कैन कोट कि वो चीजें कहाँ से आती हैं. भगवान ने कई जगह मेंशन किया है स्क्रिप्चर्स में, बट आई डोंट वांट टू इंक्लूड दोस थिंग्स राइट नाउ. बट इस पे सोचना है हमें. इस पूरे सेशन में थॉट यही लेना है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके पीछे कौन हो सकता है. ह्यूमन हो सकते हैं, या कोई सुपर ह्यूमन है, या कोई सुपर पावर है इसके पीछे जो ये चीजें मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन लेवल पे चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. सो इस पे आप लोग डेफिनेटली थॉट ले सकते हैं. सो इंटेलिजेंस कहाँ से, इफ देयर इज नो गॉड, अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कौन है जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके आप चीजें क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, या उससे आप आगे मेनी थिंग्स आप इनोवेट करते हैं. मोस्ट लाइक जो एग्जांपल्स हैं, सैटेलाइट्स भेजना है यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग डेटा प्रोसेसिंग के लिए. सो और there are some interesting facts. Brain can hold lots of information. आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस लेवल पे है. सो उसको कौन एनर्जी दे रहा है, उसको कौन इंटेलिजेंस दे रहा है. सो देयर मस्ट बी अ गॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस. देन I think I have time to play these videos. Okay. Amazing facts about sun. इसमें भी आप इस वीडियो को हम देख सकते हैं. बेसिकली इस पे पॉइंट ये दे रहे हैं कि जो हमारे आसपास फिर से अगेन से जो एनवायरनमेंट से हम चीजें देख रहे हैं, जिससे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सन इज अ वेरी लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी. अभी भी लाइक ऑन दिस अर्थ वी नीड सनलाइट फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर प्लांट्स. हमारे अपने बॉडी के लिए भी वी नीड सनलाइट. तो उस केस में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, राइट? आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे मास ऑफ सन है, और आई डोंट नो कितने जीरोस हैं, इट्स डिफिकल्ट टू काउंट, बट सर्टेनली इट्स अ ह्यूज नंबर. सो
इतने केजी का मास है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट? हम हार्डली अंडर 100 केजी हैं सब। आप लोग तो अंडर 50 होंगे आई बिलीव, बट ये अमाउंट भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना इतना वेट है सन का। As compared to sun, you can see earth ekdam like it's a very tiny, it appears like a very tiny ball. तो अगर ये फुटबॉल के साइज का है या बास्केटबॉल के साइज का है, सो जो अर्थ है इज बेसिकली अ टेबल टेनिस बॉल। उतने उतने साइज डिफरेंस है, उतना उतना बड़ा साइज है सन का, एंड मास तो आप देखिए। Can you imagine this much of temperature? हम basically 50 अभी तो I got to learn from you guys कि दिल्ली में टेम्परेचर अराउंड 46 के आसपास चल रहा है। इतना 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 टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है सन, which is providing energies to all the different planets. So ये unimaginable चीजें हैं जो हम अभी ये सोर्सेस देख रहे हैं। Again, it's a huge number. It's very far. Like it's 1.9 million kilometer away. It's away from Earth. So ये इतनी चीजें, इतनी दूरी होने के बाद भी वो पीस एंड like order and harmony में रोटेट करते हैं अराउंड दिस सोलर सिस्टम। सो अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते तो ये चीजें कैसे मेंटेन हो रही हैं, कैसे सालों साल तक ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। सो जो हमने एग्जांपल अभी देखा ये सब सराउंडिंग से ही लिया हुआ है, जिसमें हमें ये सोचना है कि इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट, व्हाट हाउ दीज थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। दिस इज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो। इसमें हनी बीज के ऊपर है, और अगेन सेम थिंग, honey bees are like very social animal just like other animals. Human भी social animal में count होता है, and then you can see this. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. So इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि वो अपने क्वीन बी को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी उनका जो हाइव है उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर, जैसे गार्ड लगे होते हैं। अपने जो क्वीन बी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हेक्सागोनल जो शेप है, दिस इज मोस्ट टाइट पैकिंग, हम साइंस में इसको मानते हैं कि ये सबसे टाइट पैकिंग होती है। और इस पैकिंग आई डोंट नो कि मतलब इस चीज़ को हम अगर ऐसे सोचते हैं कि किसने इनको डिज़ाइन बताया कि हेक्सागोनल वे में पैक करना है, इसमें उनको प्रेजेंट रहना है, फिर उसी केस में वो हनी बनाते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होने पे भी वो अपने विंग्स को विंग से उसको दे मूव देयर विंग्स टू कूल डाउन देयर हाइव्स, फिर उसी में वो हनी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये सब सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, और कितना कोऑर्डिनेटेड है वो क्वीन बी के लिए वो सब कुछ द सेक्रीफाइस। सो ये सोशल ऑर्गेनाइज जो कोऑर्डिनेशन है, ये उनको कहाँ से आ रही है चीज़ें, इफ देयर इज नो गॉड। सो देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी
सो हमने ये सारी चीज़ें अभी देखा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम शुरू से ही हम समझ रहे हैं कि इफ देयर इज अ क्रिएशन, देयर इज अ क्रिएटर, एक पर्पस है। बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमें ये इंस्पायर कर सकती हैं कि देयर मस्ट बी समबडी हु हैज डिजाइंड दिस फॉर अ पर्पस। सो ये सारी चीज़ें न्यूटन और न्यूटन के एक फ्रेंड थे, उनके बीच में डिस्कशन हो रही थी कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई होगा। ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और न्यूटन के फ्रेंड वो थोड़े एथीस्ट थे, वो नहीं विश्वास करते थे कि भगवान है या नहीं है। तो इन्होंने डिस्कशन ऐसे किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। चीज़ें किसी ने बनाई नहीं होंगी, सब चीज़ें रैंडमली बन जाती हैं। जैसे अगर एवोल्यूशन में आप अभी तो आई एम नॉट श्योर कितने लोग फैमिलियर हैं इस कॉन्सेप्ट से, बट जब एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसमें है कि एक बिग बैंग थ्योरी है। उस बिग बैंग के बाद सब चीज़ें इमर्ज होती हैं और फिर चीज़ें अपने आप बन जाती हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे जैसे टाइम पास करता है सारी चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। सो एथीस्ट फ्रेंड जो न्यूटन का था वो ये इस चीज़ को बिलीव कर रहा था कि चीज़ें रैंडम है, देयर इज नो नोबडी इनसाइड। सो न्यूटन ने अपने फ्रेंड को नेक्स्ट डे इनवाइट किया। इट्स वेरी अमेजिंग स्टोरी। सो नेक्स्ट डे इनवाइट किया और ही सेड कि ओके और समथिंग, ये एक एज यू कैन सी एक सोलर सिस्टम का एक मॉडल है, उन्होंने सामने रख दिया फ्रेंड के सामने रख दिया। देन ही सेड कि ये एक सोलर सिस्टम है। और जो फ्रेंड था वो देख के बहुत ही लाइक सरप्राइज हुआ कि वाह दिस इज सो ब्यूटीफुल, इसने ये प्रॉपर मेजरमेंट किया और ये कैसे कैसे यहाँ पे आ गया। तो न्यूटन सेड कि ये बस रैंडमली आ गया, किसने इसको बनाया नहीं है, मैंने डिफरेंट बॉल्स, डिफरेंट कलर के बॉल्स सब एक जगह बेसमेंट में रख दिया और मैं सुबह उठा तो सब चीज़ अरेंज था अपने आप ही। सो देन न्यूटन फ्रेंड सेड नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि कोई चीज़ रैंडमली ऐसे क्रिएट हो सकती है। एंड देन ही सेड कि एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग ही वाज टेलिंग यस्टरडे कि अगर ये सोलर सिस्टम एक छोटी सी चीज खुद से अरेंज होके नहीं, एक मॉडल खुद से क्रिएट नहीं हो सकता, देन हाउ दिस होल वर्ल्ड इज रनिंग स्मूथली, हाउ दिस होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। देन ही रियलाइज कि हाँ, लाइक हिज फ्रेंड को फील हुआ कि जो बात किया था वो उसमें फंस गया, चीज़ें रैंडम नहीं हो सकती। अगर रैंडम चीज़ें हो सकती हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो हमें किसी को होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। हम पेन और बुक सब छोड़ देंगे एक रूम में, सुबह उठेंगे, होमवर्क कंप्लीट, टीचर्स भी खुश रहेंगे, राइट। और आई थिंक सभी लोग यही चाहते हैं कि होमवर्क ऐसे हम कंप्लीट कर सकें, बट विच इज नॉट द केस। सो पॉइंट ये है कि कुछ भी चीज़ रैंडमली नहीं हो सकती, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट्स वेरी लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि चीज़ें रैंडमली बन रही हैं और उनके पीछे पर्पस नहीं है। So let's introduce another question for you कि ठीक है, हमने सब कुछ अभी समझ लिया है थोड़ा बहुत जो भी इस सेशन में है कि क्रिएशन है, क्रिएटर है, चीज़ें रैंडम नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई गाइड कर रहा है। हम उसको कह सकते हैं कि एक गॉड का कॉन्सेप्ट है। गॉड कौन है, क्या है, उनको कैसे समझना है, दैट विल डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बताया जाएगा। बट अब इस टॉपिक पे हम इसी इसी यही चीज अंडरस्टैंड करें कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इसी चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड गॉड एट दिस एज। हम आपको ये बात इस एज पे क्यों बता रहे हैं। अभी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि आप आप नॉर्मली ये देखते हैं कि जो ओल्ड एज में हम चीज़ें गॉडली कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, या जो थोड़े एज हो जाते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं या उनको फॉलो करना चाहिए। हमें आप क्यों बता रहे हैं, हमें तो अभी लाइक we need to play, we need to study more, right? So following this interesting question, okay, so ये एक ह्यूमन लाइफ का जस्ट एग्जांपल है कि कैसे हम ग्रो करते हैं, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं छोटा बेबी बॉर्न होता है, फिर वो लाइक प्लेफुल माइंड में रहता है, एंड देन अगेन he goes to school,
आफ्टर कॉलेज, जॉब, एंड देन लाइफ गोज ऑन. बट अगर आप इस पूरे लाइफ साइकिल को अगर आप 3 डिफरेंट जोन में आप इसको डिवाइड करें कि जो इनको बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी. सो सुपर एक्टिव जोन में जो मोस्टली आपके एज के जो लोग हैं वो दे आर लाइक सुपर एक्टिव. वो कुछ भी कर सकते हैं. आई बिलीव दे आर वेरी एक्टिव. उनको कोई भी टास्क दो, दे आर ऑलवेज अप फॉर द टास्क. जितना भी उनको आप काम कर सकते हैं, दे कैन डेफिनेटली डू. एंड जो अदर एज ग्रुप है, दैट इज इट्स कॉल्ड आल्सो, दे आर वेरी हाईली एक्टिव. जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, जो आपके जो कुछ सीनियर्स हैं, या आप भी कुछ एज ग्रुप में हैं जो आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हाईली एक्टिव एज. एंड देन जो थोड़ी लेटर एज है, जो आप जॉब करते हैं. सो इसलिए आपको भी, जब आप सुपर एक्टिव और हाईली एक्टिव जोन में हैं, एंड इट्स अगेन इट्स अ टास्क, आप खुद सोच सकते हैं कि आप उस किस एज ग्रुप में भी आप लैंड कर रहे हैं. तो आप जब सुपर एक्टिव हैं तो ही आपको पढ़ाया जा रहा है ना. किसी किसी छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते. जब आप पढ़ा लेते हैं, आप उसको ज्ञान देते हैं, उसको कुछ नॉलेज होती है, देन ही स्टार्टेड वर्किंग. जब आप वर्क करते हैं तो आपको कोई फिर पढ़ने के लिए नहीं बोलता कि आप जाके जाके स्कूल में अटेंड करके आइए. राइट, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो आपके एज में ये चीजें जरूरी इसलिए हैं क्योंकि आपकी एज एक्टिव है विद लॉट्स ऑफ फुल एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड. अगर आप इस एज में कुछ भी सीखना चाहते हैं, लाइक पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, पीपल आर स्टडिंग म्यूजिक, वो पीपल आर स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, रीडिंग वैदिक नॉलेज की ये क्या नॉलेज है, हमें इसे समझना है. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी एवरीबडी कि आप एक्टिवली इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए. सो अगर कोई भी काम XYZ, कोई भी काम हो, पढ़ने से लेके काम करने को लेके, अगर मैं आपको दूं कि आपको इस किस एज ग्रुप में उस पार्ट को रखना है, तो आप किसको देंगे काम करने के लिए? राइट, आप उसी सुपर एक्टिव और हाईली एक्टिव पीपल को अप्रोच करेंगे ताकि ये काम समझ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं. So that's why it's very important to start gaining knowledge at this stage. And I think ISKCON Gurugram, they're doing very great job in approaching you guys and providing this knowledge. So इसलिए इस एज पे हम ये समझ सकते हैं कि इस एज पे ये नॉलेज गेन करना और इस चीज को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. But I can see I have a few minutes left, but I'll try to sum my session here. There's some more slides, but मैं आपको briefly समझाता हूँ. So कोई भी चीज़ हम पढ़ाई करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए. अननेसेसरी आप नहीं करना चाहते. आप भी पढ़ाई करते हो, if one day if स्कूल डिसाइड कि कोई एग्जाम नहीं होगा, तो आप बहुत कम लोग ही इंटरेस्टेड होंगे नॉलेज लेने के लिए, बट everybody will be happy, like ठीक है, अच्छा है कि हमने पढ़ना नहीं पढ़ा, ठीक है, बहुत बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक. बट अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आपको गॉड का कॉन्सेप्ट या गॉड की कॉन्शियसनेस को डेवलप हो रहा है, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सो देयर आर सो मेनी रियलाइजेशन. मेरे खुद के रियलाइजेशन है. मैं ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 8-10 ईयर्स से मैं बाहर ही अभी अपने स्टडी वाइज और रिसर्च के थ्रू मैं कर रहा हूँ. एंड whenever I have felt in trouble or whenever I'm feeling homesick or any other things, I've always found Krishna around me. मेरे को बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशन है, बट वो I can share later someday. But I'm going to quote this book, which is a handbook of religion and health. So इस बुक में बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो अगर आप रिलीजियस माइंडसेट से या स्पिरिचुअल माइंडसेट से आप सोचते हैं, इस पे सोचना भी अगर आप इनिशिएट भी करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ. एंड बाय हेल्थ आई मीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ. सो इस बुक में कई सारी चीजें मेंशन है कि अ पर्सन हु हैज दिस माइंडसेट will have a high social quotient or spiritual quotient, you can say anything based on that. वो उनके सोचने की जो क्षमता है, या जो वो अच्छा सोच सकते हैं. This is what they are trying to say. Another interesting fact कि जो भी people when they are attending any spiritual program, at least हफ्ते में एक बार आप इस चीज पे सोचते हैं
उनकी they lived basically an average 7 years, longer life than the people who don't attend these programs. So I believe जब मैं when I was in schools and graduation, even in Delhi University, तो मैं हर week attend करता था, okay, like जो जन्माष्टमी अलग अलग programs में I used to go there. So I'm towards my 7 years longer life, and आप लोग भी इस चीज को benefit उठा सकते हैं. So the positive point is आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे mindset से रहते हैं, तो जब आप अच्छा फील करते हैं, so आपकी लाइफ भी वैसे ही बिहेव करते हैं, और आप सब लोग लंबा जीना चाहते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट. उसमें कोई बुराई नहीं है. नेक्स्ट इस बुक में फिर ये मेंशन है कि अगर अगर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे को फॉलो करता है, वो लाइफ में सेटिस्फाइड रहता है. ही इज ऑलवेज हैप्पी. he or she doesn't worry on things जो आपके साथ हो रही हैं, हो भी नहीं है तो you try to adjust the thing, but they are more satisfied than the people who are non-religious or non-spiritual platform. Especially youth के terms में, जब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, अपने सीनियर्स से पूछते हैं, सीनियर डिवोटीज से पूछते हैं, तो जब आप अच्छी तरफ सोचते हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है. सो नेगेटिव चीज़ों में है डेफिनेटली ड्रग्स हैं, अल्कोहल अब्यूज़ हैं, डिफरेंट क्राइम्स हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, बहुत अलग गलत संगत में अगर आप मिलते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो आउट यू विल मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से होगी, सो उनके पास वही चीज़ होगी आपको ऑफर करने के लिए, इफ दे आर नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. बट आपके पास अगर अच्छा बैकग्राउंड है, सो यू विल ट्राई टू गिव दैट नॉलेज टू अदर पीपल, सो दैट जो आप उनको वो नॉलेज ट्रांसफर कर सके जो भी आप सीख रहे हैं. सो जो भी रिलीजियस माइंडसेट से या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, उनके अंदर ये सारी जो गलत चीज़ें वो बहुत लोअर लेवल पे होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन रिलीजियस टॉपिक. आई थिंक वी कैन स्किप दिस स्लाइड. एंड अगर हम नहीं सीखते हैं, ठीक है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हैं कि ठीक है क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट गॉड कॉन्सेप्ट, या हम उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते हैं या नहीं समझने की कोशिश करते हैं. सो बहुत सारे एक तो दिस एग्जांपल टू शो दैट कितने सारे क्राइम्स हर मिनट हर आवर्स पे होती हैं. you guys can read these things. I'm not going to read all of it. So ये एक नेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी जिसमें they were saying कि हर 20 मिनट्स पे मर्डर हो रहा है, एंड चीटिंग केसेस हैं, चोरियां हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी थेफ्ट्स हो रहे हैं. सो अगर आप नई कॉन्सेप्ट करते हैं, सो आप डेफिनेटली आप अलग रास्ते पे जाएंगे जो बेसिकली प्रिस्क्राइब नहीं होती और एक सोशल कम्युनिटी के हिसाब से वो सही नहीं है. सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ सोशली. इंटरनली ऑल्सो इज गोइंग टू अफेक्ट यू. आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. यू विल सडनली ट्राई टू जनरेट सम नेगेटिव थॉट्स, जो फिर ये चीज़ें जो क्राइम्स की तरफ आप मोटिवेटेड हो जाते हो इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स. ये डेंजर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. और एज यू गाइज लाइक जब आप आगे और स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें और रियलाइज होंगी, एंड स्टिल यू गाइज कैन फील कि चीज़ें ऐसे होती एग्जिस्ट करती हैं. So, I think I've taken lots of time here. So हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बाकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने क्या कमेंट्स किए हैं बेस्ड ऑन कि क्या चीज़ें नेचर में कैसी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. आप लोग सब आई बिलीव सब फेमिलियर हैं. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही हैज द हाईएस्ट IQ within research community, scientist community, I think whole world also. And he said that there is a perfect brain behind all the natural physical laws. Because उन्होंने अपनी देर तक स्टडी की, उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, हर एक चीज़ को ड्राइव करने की कोशिश की, and then he found कि जितने laws वही सोलर सिस्टम के बेस पे हैं, ब्लैक होल की जर्नी है, there are so many things. I will not go into all of them. But the thing is, ये चीजें regulated हैं, and there is definitely a brain behind all these things. Similarly, Lord Kelvin also is a like great scientist. उन्होंने भी बहुत सारे like theories दिए हैं in chemistry and physics, and he also quote
that if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. तो आपको साइंस में आप बहुत हद तक स्टडी भी करेंगे तो आपको लास्ट में रियलाइज होता है कि दिस इज समथिंग इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. सो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को. दिस photograph of Ramanujan was a great Indian mathematician. और इनका भी ये स्टेटमेंट है कि an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. So अगर आप ये भी कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसमें अगर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है या उसका थॉट गॉड का थॉट नहीं है तो वो उस इक्वेशन के बहुत हद तक मीनिंग है. सो they're all learned persons. They have said things because they have realized in their life after studying for so long. So हम इनसे भी सीख सकते हैं. हमें नहीं फिर वही सेम 20 years हम भी 30 years स्पेंड करें and then we realize okay those people are right. वो सही कह रहे थे कि there is a concept of God. हम उनसे भी सीख के हम फील कर सकते हैं, right? We'll see couple of scriptures. कि scriptures क्या कहते हैं इस चीज को. So this is one of the Vedant Sutra. Vedant was written by Ved Vyas ji. And उसमें ये जन्माद्यस्य यतः, this is a Vedant Sutra, which means God is the original source and cause of everything. So वहाँ claim है. So these are the things जहाँ पे directly claim करते हैं कि okay, God is the original source and cause of everything. So इस पे it's very clear to understand. Definitely इस पे हम भी discuss कर सकते हैं. Another scripture is called Brahma Samhita. Is जिसके सारे श्लोक ब्रह्मा जी ने खुद बोले हैं when he got his realization after like doing meditation for a very long time. So he said Anadir Adir Govinda Sarva Karan Karanam, which means is God has no beginning, no end. He's the origin of everything. So he is ultimate cause of all the causes. जितनी भी चीजें हो रही हैं उन सब के जो कॉज हैं ही इज द अल्टीमेट कॉज. और बेसिकली आप जब इस पूरे चीज को आप देखते हो सो देन ही टॉक्ड अबाउट कृष्णा अ लॉट. उनको वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, which is another topic to discuss. Lastly, I want to conclude this seminar. So हमने अब तक जो भी लर्न किया बेस्ड ऑन बेसिकली, और जो अभी आप स्कूल में भी सीखते हैं वो बेसिकली 3 steps पे सीखते हैं. वन इज बाय योर बुक्स. आप बुक रीडिंग करते हैं घर पे स्कूल में, आप उससे समझने की कोशिश करते हैं. फिर बेस्ड ऑन दैट बुक्स आप कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करते हैं और फिर आप अपने टीचर से भी वो चीज सुनते हैं. सो ऑल दीज 3 एक्टिविटीज, there are 3 ways to learn any process, whether आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक से आप ऐसे समझ सकते हैं. एंड ऑलमोस्ट सिमिलर वे जो स्पिरिचुअलिटी में भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं. सो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, वन इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण, विच इज अ डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. सो आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ स्वीट, आप सामने देख सकते हैं कि कोई भी आप अपने फेवरेट स्वीट्स इमेजिन कर सकते हैं. तो आप उस स्वीट को आप उसको खाते हैं, देन यू फील कि ओके ये स्वीट है. अगर कोई चीज वाइट कलर में है, देयर इज नो लेबल्ड ऑन इट वेदर इट इज अ सॉल्ट और शुगर. सो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि विच वन इज सॉल्ट, विच वन इज शुगर. सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट परसेप्शन, इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण. सेकेंड इज अनुमान प्रमाण. सो यू सी सम एविडेंसेस. आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो फेमस है वो राम सेतु है. नासा ने और कई सारे डिस्कवरीज हैं जिन्होंने बताते हैं कि वो ये ह्यूमन फॉर्म नहीं लग रहा कि ये पूरा बिल्ड कर दिया गया है इस बाय कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका. सो वो एक एग्जांपल है, वो एक एविडेंस है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि रामायण, जो भी रामायण की स्टोरीज हैं, जो रामायण है वो सच्ची हैं. दे आर नॉट माइथोलॉजी, दे आर नॉट फ्रेम्ड. सो कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक भी हम लाइक पहले बताते हैं कि हम वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं. तो वहाँ पे कई सारे एविडेंस हैं जिनके बेस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ थिंग्स, अगर आप प्रेजेंट वे में आप सोचना चाहते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे थे पहले.
And the third is, which is most important thing, is called Shabda Praman, which means hearing from a bona fide guru or bona fide authority, जिन्होंने अपने लाइफ के कई साल डिवोट किए हैं इस चीज को समझने के लिए, आप उनसे सुन के सीख सकते हैं, जैसे सेम वे आप अपने इस क्लास में भी सीखते हैं. सो वट एवर I'm trying to tell you people, you already know most of the things, you already know. जैसे जो लर्निंग प्रोसेस, आप स्कूल में भी यही सीखते हैं और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से सीखेंगे. सो देयर पीपल ऑलवेज थिंक कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा आपको लाइक ब्लाइंडली आपको यकीन करना है. आप ब्लाइंडली उधर भी यकीन कर रहे हैं, मटेरियल लाइफ में भी और टीचिंग में भी यकीन कर रहे हैं. So that's what I wanted to show here. And yes, I mean, I'm happy to take any questions, and this is my concluding slides. Thank you so much for listening to me, and I'm very grateful. Thank you so much. Okay, thank you so much, Prabhuji. There's a feedback form, like I said in the beginning, which you need to fill, and it is compulsory to fill that. So we're just putting the link of that in the chat box. So please fill that up. And since we don't have much time left, so we'll be able to take up only 3 questions. So please message your questions to either me, or you can message the ID and we'll take up your questions. All those who are raising their hands, it's better if you can type your questions. So, like, till the time everyone is writing their questions, I'll just recap the session what Bineet sir has enlightened us about. So, in very short, he discussed about a acronym called DECOIT. So, DECOIT first, like D stands for design. So, we discussed an example of an eagle versus plane. And then A, which is artistry. So we discussed about the landscapes, beautiful landscapes. Then C, which is creation and craftsmanship. There the example was given of flowers and mathematician spider. And then O, order and harmony. We discussed about the solar system, how it's, in such great harmony, the planets don't collide with each other. And then I, which is intelligence, water cycle. Then T, tremendous energy. We discussed about the sun. And then social organization. We discussed about the bees, like how bees work together. So in short, it's DECOIT. Then we also discussed that, how the childhood and the teenage period is the best time to learn. So therefore, knowing about God in this stage is very important. And then Bineet sir also, told us about a book which is Handbook of Religion and Health, which is published by Oxford University. And there we got to know various benefits of spirituality, like long life and satisfaction, lower level of crime rates, suicidal cases, etc. And then we also saw great scientists that they are also believing in God. Such a small fact that there is a book 100 years of Nobel prizes, and the statistics also show that 90% of the scientists who got Nobel prizes, they practice some kind of spirituality and religious practices. So so like even scientists believe in God. So that's like in a nutshell, this was the whole session. So now over to Vinda, she can speak the questions. Okay, so we heard so many proofs of God, and we ended by learning that we learn by Shabda Praman through scriptures. But we have heard and heard that our scriptures are mythology. But why are they mythology? Any proofs for it? So all these things and themes we'll be discussing in the next session. So for now, heartfelt gratitudes to Bineet sir, who put in so much of effort, so much of time to bring out such a sensitive and important and interesting topic to us. It was an amazing session, and I'm sure we all had a special takeaway today. Thank you so much, sir. And can we have the slide for the next session? So next week we have a very, very important and interesting topic lined up.
mythology, fictional or real, taken up by Hardik sir. He is a master's in environmental management and is the head of operations in NUTS. So it would be a very, very interesting session, and we hope to see you all next Sunday. Thank you so much for coming. And if you have any questions which are not related to the topic, then you can message them on this number and we'll definitely take them up. So those who are raising their hand, they can text their questions to either me or to anyone. Are we going to answer questions or we'll take that later? We are waiting for questions. Okay. I have a question that Yeah. it is said that Earth and other planets came from a Big Bang ball. So why only Earth has oxygen and trees on it, as they all came from the same ball, right? Yes, very, very important question. Thank you so much, Vibhuti. So to answer this question, so no, actually the point is nobody has idea how this whole thing is created in the material world. अगर हम सोचते हैं इस चीज को कि how we going to start thinking about it, अगर if we begin this whole understanding from scratch, that's what scientists did some 100-200 years ago. There was a big bang theory, all the matters concentrated, there was a blast because of the energy and things got separated. All the universe are just अभी जो metaverse की बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे universe हैं. So Earth, अगर आप उस concept को भी समझने की कोशिश करते हैं, so हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि we still don't know हर planet पे किस तरह से जीव present है या trees या oxygen है. So कई सारे लोग अभी भी मंगलयान पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे लाइफ देखने की कोशिश कर रहे हैं. But the important thing is, I don't know how much that is relevant to us if we think about humankind. जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर जो नॉर्मल इंसेक्ट्स हैं या एंट्स हैं, जो चींटियां आप देखते हो अपने आसपास, उनको वो इस वर्ल्ड को अलग तरीके से परसीव करते हैं. उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी एक अलग लैंग्वेज है जिसको हम नहीं समझ सकते. करेक्ट? तो उनकी अपना एक डायमेंशन चल रहा है, एक अपनी फिजिकल नेचर है जिस नेचर के थ्रू वो समझ रहे हैं. सिमिलरली हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, जितनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं आसपास, जो चींटियां हैं या इवन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, स्मॉल से लेके बिग एनिमल्स तक, वो इस चीज को नहीं समझ सकते. सो हम भी अगर इट जस्ट अ स्पेकुलेशन दैट इवन इफ देयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स, उनके अपने रहने की चीजें डिफरेंट होंगी. इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. दे माइट बी कंफर्टेबल विद देयर ओन इकोसिस्टम, जैसे हमारे अर्थ पे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी हैं. सो यस, आई मीन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाई नॉट अदर प्लैनेट्स. वी डोंट नो, देयर माइट बी सम जिनको हम परसीव नहीं कर सकते. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच. It was a great question. Thank you. We can take up the last question by Toshani, the ID of Toshani. I'm sending you a request to unmute. You can share a question. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. My question is, can you please tell how to improve our concentration in Krishna Bhakti? Okay, so you're already on, you're above the God concept now. So good. Prabhuji, we can take up the questions which are not related to the topic, like the system we introduced. You can text that number, it is in the chat as well. And all the questions which are not related to the topic, because we don't have time right now, you can text there. Anyone else has any question related to the topic? Did you guys understood anything? If you did, please show some reaction. If you can, if you did any topic or something. I had great time interacting with you people. I think you guys are very young and dynamic. So it's lots of energy also coming to me, and I'm definitely very charged right now after discussing these concepts.
Those who have filled the feedback form, please show a thumbs up, and then we can conclude today's session.